Hello and welcome to the myself Professor N.D. Pupate for our next lecture on the new chapter, that is infrared spectroscopy. So in this chapter there is an thing that we have to be discussed, like commonly is the radiation source, then means the instrumentation part. So before starting with this chapter, whatever thing that we have to be cover. So basically, first upon the what is the introductory part of the infrared spectroscopy, then we are covering like whatever the regions of infrared. Four regions are there. Then we are covering about the various wavelength, means requirement for the IR radiation absorption. So then we are discussing on the theory, in which there are the three different energy that we have to be study, like rotational, vibrational, electronic energy, and how they are associated with each other. Then we discuss on or we study on the polyatomic molecules, modes of vibration of polyatomic molecule. Okay, so where we study degree of freedom, and where we also study the different types like stretching, bending, vibrations, and factor affecting to it, or factor affecting the vibration that we are studied. After that we are studying on the what is the instrumentation part in detail, where we study radiation source, monochromator, and all the components like detector and particular sampling systems. So sampling system is very important, in which sampling system we are handling the different samples like solid, liquid, and gases. The question is asked for 12 marks also onto the sampling system. So very important part is there of the instrumentation. Then we study onto different detectors that we are using in this technique. Okay, and then the amplifier and readout, and finally a special lecture on what is the application of IR spectroscopy. Might be study about the particular beams, single beam, double beam, but in the case of there isn't Fourier transfer infrared spectroscopy, but which is not included in your syllabus, FTIR. Okay, but this all things are like the instrumentation part, radiation source, mostly everything is simple or same, but change only the addition of the mirrors. Okay, so we come towards the today's lecture. So in the case of today's lecture, we have certain objective like basic introductory part that we have to be study, include the theory and requirement of IR. So we discuss on that one, that requirement of IR, it generally depends upon the two factors, like the correct wavelength of radiation, and second one is the dipole movement. Okay, so change in dipole we can say. So positively particularly charge, it's having a own charge that get changed when we apply a potential. Okay, so नेक्स्ट वन इज द वट एवर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दैट वी हैव टू बी स्टडी. हम क्या करेंगे उसके बाद मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इस चीज़ में स्टडी करेंगे. सो इन द केस ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जनरली वी आर स्टडी अबाउट the degree of freedom of whatever the molecules are there. Then there is a process of stretching, bending. The types of modes of vibration are two, that is stretching vibration and the bending vibrations. And in the stretching that we are discussing on like symmetrical, unsymmetrical stretching, and bending, scissoring, rocking, wagging, and twisting. So everything we study in that point. And finally, whatever the factors are there that get affected, that we have to be study. So these whole parts we are covering in this today's lecture. So move towards our first basic introductory part. So in the case of basic introductory, we are actually put up some points, like some are classified into the absorption spectroscopy, some are classified into the emission spectroscopy, like UV, IR, NMR are in absorption spectroscopy. And what is the emission spectroscopy, like atomic emission, atomic absorption. So emission takes place over there. Then what is the fluorescence spectroscopy that we have studied, that also comes in this one, emission spectroscopy. Okay, so
that is the part in the introductory. So IR lies in the absorption spectroscopy, where radiation is passed, whatever the substance that we have studied that absorb that radiation. So that is an important first point. So that is introductory. Then in the next slide we are discussing on the introductory part, like where what is the infrared radiation, what is the infra mean less and red mean less energetic than red. So we have to study on the infrared spectroscopy and where it lies. As we already know, there are the various region, gamma rays, X rays, UV rays. Then in this then what UV rays, IR rays, microwave region and radio frequency region. These are the 6 regions where we study about the UV. Now we study the IR. So after the UV the region comes is IR. ओके यूवी के विजिबल रीजन के बाद जो रीजन आता है उसे हम आईआर रीजन बोलते हैं. इन दिस केस वी आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम gamma rays, X rays, UV rays, infrared, micro regions, okay, and then the radio AM means radio region that comes. So that thing we have covered. So in the case of this, just remember that point. After UV के बाद जो रीजन आता है वो कौन सा है? इंफ्रारेड. आपको सिर्फ 6 रीजन याद ही रखने हैं, gamma, X, UV, infrared, microwave and radio. Okay, so now move toward the point, that is the infrared spectroscopy is the spectroscopy that deals with the infrared region. हमें अगर कुछ चीज़ भी हम देखते हैं ना इंफ्रारेड में तो हमें रेड दिखती है. सो इसमें रेड रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज लाइट विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ. इसकी जो वेवलेंथ है ना वो लॉन्गर है. ओके, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ विजिबल में तो यूवी की मीन्स रेड की थी जो कि 800 के अराउंड थी नैनोमीटर के, लेकिन बियॉन्ड 800 टू वट एवर 2500 जो रीजन आता है. ओके, सो एवरीथिंग कम्स मोर देन दैट वन, 25,000 से लेके बहुत सारा जो रीजन आता है नैनोमीटर का वो हमें पूरा स्टडी करना है. सो दैट होल रीजन्स दैट कम इन द आयर विच इज़ नॉट विजिबल टू आवर आइज, ये हमें हमारे आंखों से दिखता नहीं है. ओके, सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द एनालिसिस ऑफ इंफ्रारेड लाइट. हम इंफ्रारेड लाइट उसके ऊपर पास करेंगे इंटरेक्टिंग विथ द मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड एज ऑलरेडी डिस्कस ऑन दैट वन, दैट इज इट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एब्जॉर्प्शन की वजह से वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा. अब ये लाइट्स कहाँ पे होता है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूवी रीजन क्या, और यहाँ पे जो है वो जो है माइक्रोवेव रीजन की इसमें आता है. तो इसके बीच में जो रीजन है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन. ओके, इंफ्रा मीन लेस. ओके, एंड दैट एनर्जेटिक. ओके, इंफ्रारेड विच इज द लेस एनर्जेटिक दैन द विजिबल रेड, उससे क्या है थोड़ा लेस एनर्जेटिक है, hence also called as the infrared. Absorption of radiation by any compound in this region, absorption of radiation by any compound in this region is called as the molecular vibration. यहाँ पे कभी भी याद रखना है कि हमारे molecular vibration, molecule का एक vibration होता है, वो होता है generally there is a complete vibration of molecule takes place. Okay, with consider with the center, एक चीज़ हमें बाद में स्टडी करने की, with consider with the nucleus of the centers also, and also called as the vibrational spectroscopy. यहाँ पे ऐसे vibrational होने लगता है, that's why it is called as the vibrational spectroscopy. अगर आपने नीचे वाली डायग्राम देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेवलेंथ थोड़ी क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा ये विजिबल रीजन की तरफ, या ये यूवी रीजन है, अब ये रीजन बढ़ रहा है तो इनका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इनका और डिस्टेंस बढ़ रहा है. और इंफ्रारेड में क्या हो रहा है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वेवलेंथ ज़्यादा बढ़ने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम होती जा रही है. सो हियर इज एन जनरली वाइब्रेशनल टेक्स प्लेस, ऑल्सो कॉल्ड एज द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ वी आर देयर इज अ पर्टिकुलर नीड टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन. बिफोर दैट वी स्टडी अबाउट द रीजन्स. रीजन में कुछ चीज़ गलत है, जैसे कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, इंफ्रारेड रीजन हमें याद रखना है. सो फर्स्ट वन इज द फोटोग्राफिक रीजन, जस्ट रिमेंबर दैट वन. इट लाइज, ये जो रीजन होता है ये इमीडिएटली कब होता है, जब हमारे पास क्या है, व्हाट एवर द रेड है, इंटेंस रेड लाइट है, रेड लाइट के पास जो रीजन आता है दैट कम्स फ्रॉम विजिबल टू 1.2 माइक्रॉन का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज द फोटोग्राफिक रीजन. देन देर इज अ नेक्स्ट रीजन इज कम्स फ्रॉम 1.2 to 2.5 माइक्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द वेरी नियर इंफ्रारेड रीजन, ऑल्सो कॉल्ड एज द ओवरटोन रीजन. इसे हम बोलते हैं ओवरटोन रीजन भी बोलते हैं. देन द नेक्स्ट रीजन आल्सो कम्स दैट कॉल्ड एज द
whatever the vibrational region where from 2.5 to 25 microns. ओके 2.5 टू 25 यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं बिकॉज इट आल्सो कॉल्ड द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे रोटेशनल रीजन हम बोलते हैं. सो एब्जॉर्प्शन टू द वाइब्रेशनल यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम मॉलिक्यूल एंड फिंगरप्रिंट रीजन. सो जस्ट रिमेंबर दैट वन. फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है 1300 से लेके नीचे जो रीजन रहता है उसे हम फिंगरप्रिंट रीजन है. ओके और ऊपर फंक्शन ग्रुप रीजन हम जो बोलते हैं. सो whatever the far infrared region comes where rotational region takes place generally lies from 25 माइक्रोन से लेके 300 से 400 माइक्रोन. यहाँ पे हम बहुत कम बार स्टडी करते हैं. ओके सो जनरली अगर हम इसको माइक्रोन डिवाइड बाय 1 बाय लैम्बडा और 1×10⁻⁴ और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रीजन कम फ्रॉम 4000 सेंटीमीटर से लेके नीचे तक का जो रीजन आता है वो इसमें स्टडी करते हैं. सो मोस्टली वी स्टडी नियर इंफ्रारेड रीजन और बहुत कम बार हम क्या स्टडी करेंगे रोटेशनल. यहाँ पे वाइब्रेशन की जगह पे क्या चाहिए हमें रोटेशनल होना चाहिए. सो दैट ऑल थिंग्स कम स्टडी इन दिस केस. सो रीजन फ्रॉम 25 माइक्रोन से लेके 300 टू 400 माइक्रोन तक. ओके सो रीजन कंटेन द बेंडिंग वाइब्रेशन. अब ये तो स्ट्रेचिंग बेंडिंग हम स्टडी करेंगे. ओके सो जस्ट रिमेंबर दैट वन दैट कंटेन द बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ carbon, nitrogen, oxygen, fluorine with atoms heavier than 90 adjacent to microwave regions, low energy and user to rotation frequency. because यहाँ पे रीजन भी जो है ना रोटेशनली होता है और वो जो कंपोनेंट रहता है ना बहुत रेयरली यूज करने वाले कंपोनेंट हम इसमें स्टडी करते हैं. तो फार इंफ्रारेड रीजन बहुत कम बार हम स्टडी करते हैं. मैक्सिमम हम स्टडी करते हैं वेरी नियर टू नियर इंफ्रारेड रीजन. ओके सो कीप इट इन दैट माइंड. सो दैट इज अ रीजन. देन वट एवर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ कंडीशंस है. Okay, so conditions are there are the 2 conditions that are the requirement of IR radiation. Like first condition is the correct wavelength of radiation. अब correct wavelength of radiation होता क्या है. सपोज आपके पास एक आधा कंपाउंड है और वो कंपाउंड क्या हो रहा है मूव हो रहा है. ठीक है अब मूवमेंट ऑफ द कंपाउंड टेक्स प्लेस. सो मूवमेंट ऑफ द कंपाउंड लाइक ऐसे और सपोज हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड है ये है उसकी मूवमेंट है. ठीक है तो यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है. ठीक है और इधर से हमने क्या किया है एक रेडिएशन अप्लाई कर ली. वे अप्लाई अ रेडिएशन फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ओके हमने क्या किया इसके ऊपर ऐसे एक रेडिएशन इसके ऊपर हमने ऐसे अप्लाई कर ली. ठीक है तो हम जैसे हमने इसमें रेडिएशन अप्लाई कर ली. अब रेडिएशन जब अप्लाई करते हैं ना तो इसकी जो मूवमेंट होती है ओके इसकी खुद की एक मूवमेंट है और उसकी एनर्जी से मूव हो रहा है. नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की रहती है. हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई करते हुए कि छोटी से लेके बड़ी से एनर्जी का हम अप्लाई करते हैं. लेकिन जब वो एनर्जी हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो खुद की है जब वो बैलेंस करेगा जब ये खुद बैलेंस करेगा तब दोनों की एनर्जी जब सेम होगी तभी वो रेडिएशन अप्लाई करता है. और अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि व्हाट एवर द वेवलेंथ इसकी जो एम्पलीट्यूड है ना वो अब इसके साथ डबल हो जाएगी. क्यों डबल हो रही है क्योंकि इसकी खुद की थी एनर्जी. ठीक है और बाहर से हमने अप्लाई किया सपोज उसकी भी एक एनर्जी ऐसी ही थी. अब ये दोनों ठीक है ये दोनों भी क्या हो गया मैच हो गया अब दोनों में. ठीक है दोनों भी मैच होने की वजह से इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई है और वो एक्सेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और गिव आउट करता है. सो दैट इमिशन और एक्सेस एनर्जी टेक्स प्लेस वाइब्रेशन एनर्जी टेक्स प्लेस. ओके सो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि मॉलिक्यूलर एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. इनकी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है जो यहाँ पे दिखाई है और हमने क्या किया है बाहर से अप्लाई की वाली एनर्जी है. दोनों जब मैच होते हैं व्हेन दे बोथ गेट मैच हियर इज वन वर्ड व्हेन बोथ मैच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस तभी जाके उनका एब्जॉर्प्शन होता है. टेकिंग द एग्जांपल ऑफ HCl हमने एक HCl के एग्जांपल लिया 8.7 10⁻³ सेकंड इनवर्स और 2890 सेंटीमीटर इनवर्स. इसकी एनर्जी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमने अप्लाई किया है सपोज एक 2000 से लेके 3000 तक हमने अप्लाई किया. तो उसमें से क्या हो जाएगा बियॉन्ड 2890 मीन्स वाट एवर द रीजन 2900 से लेके 3000 ये निगलेक्ट हो जाएंगे सीधे चले जाएंगे और 2890 के नीचे 2800 के तरफ जो नीचे का रहेगा 2000 तक वो भी सीधे चला जाएगा. जब ये रीजन 28090 पे आएगा ना तो हमें क्या मिलेगा ऐसा पीक मिलेगा. पीक यहाँ पे कभी भी डाउनवर्ड रहेगा. ठीक है यहाँ पे ऐसा पीक मिलेगा और रिमेनिंग वन जो है ना हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी मिलेगी और इसके आगे भी मिलेगी.
लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, और हमने रीजन क्या लिया था, यहाँ से लेके 3000 से, ठीक है, वट एवर द रीजन दैट कम्स फ्रॉम 3000 को भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हमारे, ओके। लेकिन जब ये 2980 जब हमारी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये जब मैच होगा तभी इसमें क्या एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे कभी भी याद रखना, हमें मिनिमा मिलते हैं, मैक्सिमा कभी नहीं मिलते, we get it the minimas. That is the first requirement, and second one is an electrical dipole. So in the electrical dipole generally molecule can only absorb, इसमें भी absorption के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन रखी की थी, इसकी एनर्जी थी, दोनों मैच हो गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। कब बढ़ेगा, जब दोनों की मैच हो गई और एनर्जी डबल हो गई और ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगेगा। अब इस चीज़ में वो अलग चीज़ है, जैसे कि डायपोल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डायपोल आ गया, ओके। सो व्हेन मॉलिक्यूल ओनली एब्जॉर्ब आयर रेडिएशन, अब इसमें आयर रेडिएशन कब एब्जॉर्ब करता है, व्हेन इट्स एब्जॉर्प्शन कॉजेस चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डायपोल। क्या होने लगेगा, मॉलिक्यूल कैन ओनली एब्जॉर्ब आयर रेडिएशन व्हेन इट्स एब्जॉर्प्शन कॉजेस चेंज इन इलेक्ट्रिकल डायपोल। इसके इलेक्ट्रिकल डायपोल में चेंजेस होने लगेंगे। इलेक्ट्रिकल डायपोल में चेंजेस मीन्स व्हाट, molecule can set electrical dipole when there is a slight positive or slight negative charge on component, जब उन कंपोनेंट के ऊपर पर्टिकुलर चार्ज होगा। अब ऐसे चार्ज वाले कंपोनेंट पे हम रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रिकल डायपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड मीन्स आयर रेडिएशन, तो क्या करने, आयर रेडिएशन टेंड्स टू चेंज और अपोजिट चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव निगेटिव की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, मीन्स अपोजिट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस कॉजेज डिक्रीज द सेपरेशन। उनके बीच में का सेपरेशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज, मीन्स पॉजिटिव का निगेटिव में, निगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्जन होने लगेगा। द कॉजेज डिक्रीज इन सेपरेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ चार्ज एटम्स। उनके बीच में सेपरेशन तो होगा नहीं, लेकिन क्या होने लगेगा, वाइब्रेशन ऑफ चार्ज एटम्स, उनके बीच में यहाँ पे क्या होने लगेगा, ऐसा वाइब्रेशन होने लगेगा, ठीक है। सो मोर इज अब्जॉर्प्शन मोर इंटेंस पीक्स, जितना ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज डिपेंड है, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमें इंटेंस पीक मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, लाइक द कंडीशन लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक N2O2 never shows the IR radiation because they doesn't show such a kind of charge, so that's why they never shows the absorption of IR radiation. So IR radiation में हम कभी भी like gases are there, कुछ भी अगर हम लेंगे, N2 गैस इज देयर, O2 गैस इज देयर, ऑक्सीजन, तो ये कभी हमें दिखेगा ही नहीं आयर पे, कितने भी पास करो हमें उसका आयर मिलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं लाइक carbon dioxide, CO2, water vapors are there, they can absorb the IR radiation but they never interfere the IR spectra, और IR spectra को interfere नहीं करते, otherwise affect भी नहीं करते, ठीक है। Then there is another one, ethylene is an example, we take the CS triple bond CH, ठीक है, otherwise we take the example of CS2 double bond CS2, okay। हमने क्या लिया एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का लिया। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक हाइड्रोजन, अब सपोज इसमें का एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा कि जैसे हम एक कंपोनेंट, एक हाइड्रोजन हमने क्या किया है, एक रिप्लेस किया Br से, तो उसकी सिमेट्री बदल जाती है, उसकी क्या होने लगती है, इनिशियल दे आर सिमेट्रिकल। वी टेक द एग्जाम्पल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड और CS ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इन सब में क्या है कि एक सिमेट्री है, लेकिन सिमेट्री कब बदल रही है, जब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ब्रोमीन, सो इट सिमेट्री गेट चेंज, और जैसे इसमें सिमेट्री बदलेगी तो ये आयर एब्जॉर्प्शन करने लगेगा। सो दैट थिंग मस्ट बी रिमेंबर इन द केस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ऑफ आयर। जब ये दोनों चीज़ें होगी, इलेक्ट्रिकल डायपोल और करंट प्रेवलेंस, देन वही उसी वक्त तो एब्जॉर्ब करने लगेगा। सो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then the next one is the whatever the principle of IR. So what is in the case of principle of IR radiation? तो
इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, लाइक आई रेडिएशन फॉल करेगी सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस रेडिएशन क्या करेगा, इट इज़ एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब्सटेंस रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन इसके ऊपर पास करेंगे, सब्सटेंस ने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब वो कब करेगा, दैट कंडीशंस कम्स व्हेन इट इज हैविंग करेक्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, इट इज हैविंग इलेक्ट्रिकल डायपोल, जब दोनों भी चीजें रहेगी तभी जाके वो क्या करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, और जैसे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा वाइब्रेशनल, जनरली एक्साइटेड स्टेट में नथिंग बट वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाएगा, एंड इट गिव्स द एनर्जी and come toward the ground state. So this whole thing is nothing but the principle of IR. Okay, यहाँ पे भी हमने दिखाया था कि whatever the principle of IR is there, where it doesn't means induce नहीं होता, इसमें क्या नहीं induce होता है, generally there it can't be converted it into or enough energy to induce electronic transition as seen with UV. Okay, does not have enough energy to induce an electronic transition as seen with UV, but absorption of IR is restricted to compound with small energies. Absorption of IR, generally UV बहुत ज़्यादा energetic है, we know that one, तो it can induce the electronic one, but IR less energetic है, तो इसमें maximum possible क्या होता है, rotational as well as vibrational. Okay, electronic का बहुत कम बार होता है, उसमें हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं. Okay, so फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब आयर रेडिएशन, तो अगर हमें एब्जॉर्ब करना आयर रेडिएशन तो वाइब्रेशन और रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल मस्ट कॉजेज नेट चेंज इन द डायपोल मूवमेंट. अब डायपोल मूवमेंट कब होगा, जब उसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशनल और रोटेशन दोनों में से एक विद इन अ मॉलिक्यूल अगर होता है, उसमें चेंजेस होने लगते हैं, तभी जाके वो डायपोल मूवमेंट शोन करने लगता है. और सब्सटेंस फॉल इंसिडेंट रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन व्हेन देयर इज अ डायपोल मूवमेंट टेक्स प्लेस. और दूसरा ही पॉइंट क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मैच, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर वो दोनों की सेम रह गई तभी जाके वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, एंड कॉज अ चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा. वो जो एक्सेस एम्पलीट्यूड है ना, दैट गिव्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्स, और वही हम स्टडी करते हैं. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ IR. देन वी गोइंग टू बी स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑफ IR. सो इन द केस ऑफ थ्योरी वी आर स्टडी अबाउट द three region: electronic level, vibrational level, rotational level. As we know, rotational is the less energetic, then come the vibrational, then comes the electronic, which is the highest energetic. So यहाँ पे हम rotational और vibrational दोनों ही maximum study करते हैं. Okay, so when a molecule absorb, एक आधे molecule ने absorb कर लिया radiation, convert from, अब क्या करेंगे हम, एक substance से substance के ऊपर radiation pass किया, radiation pass करने के बाद उसके दोनों requirement है, मैचिंग हो गई रेडिएशन की और डायपोल इंटरेक्शन भी हो रहा है. तो अब दोनों मैच हो रहे हैं और उसके ऊपर रेडिएशन पास करने के बाद इट कन्वर्ट फ्रॉम लोअर स्टेट टू द हायर एनर्जेटिक स्टेट. इसमें क्या होता है, लोअर स्टेट टू हायर, ये सबसे लेस एनर्जी रोटेशनल है. इसमें एक छोटे पॉइंट है, ये जो है इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, जो थोड़ी हायर है. ओके, दैट कम्स टोटली वाइब्रेशनल एनर्जी, और वो जो पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक. सो दिस वन इज रोटेशनल. ओके, सो इन द केस ऑफ दिस वन, ये पूरी जो है वाइब्रेशनल हो गई, वो ये दोनों भी, और ये रोटेशनल हो गई और ये इलेक्ट्रॉनिक हो गई. ओके, सो व्हेन एब्जॉर्ब लेस एनर्जी, तो सबसे लेस एनर्जी वह होती है तब रोटेशनल होता है. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट होल 3 पॉइंट्स दैट आर सेम. अभी हमने पहले स्टडी किया है कि 3 एनर्जी, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, वाइब्रेशन एनर्जी VE, rotational level JE. Okay, so here is a JE, here is a VE, vibrational energy. So that remember, it is a vibrational spectroscopy that we are known. So when molecule absorb, convert from lower energy state to the ground, higher energy state. Ground means higher energy जाने के बाद क्या करता है, gives out the energy and come toward the ground state. Generally ये give up करता है, means higher amplitude जो उसने absorb किए है वो एनर्जी give up करता है, उसकी एनर्जी तो वैसे ही रहेगी. Okay, so when absorb less energy, rotation takes place. Okay, so transition occurs between, लेकिन इसमें ट्रांजिशन कब होता है, बिटवीन रोटेशनल क्वांटम लेवल. रिमेंबर दिस हो ना, हमने पहले क्या कर रहे हैं, रोटेशनल स्टडी कर रहे हैं. उसमें क्या होता है,
रोटेशनल क्वांटम लेवल विद इन सेम वाइब्रेशनल लेवल। रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल से लेके सेम वाइब्रेशनल लेवल तक द एनर्जी स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज द रोटेशनल स्पेक्ट्रम। हम वही चीज अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के करेंगे तो द ट्रांजिशन ऑकर बिटवीन द वाइब्रेशनल क्वांटम लेवल विद इन सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल, सो दैट्स कम्स द वाइब्रेशनल। सो तीनों भी सेम है एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन द रोटेशनल क्वांटम लेवल विद इन द सेम वाइब्रेशनल लेवल, एनर्जी स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज द रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ऑप्टेन इन फार मीन चौथा जो पॉइंट था उसके अंदर होता है 25 से लेके 300 टू 400 माइक्रोन। ओके, वही चीज अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब मोर एनर्जी मीन्स वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशनल क्वांटम लेवल विथ सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल। अभी यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशनल, वहाँ पे था वाइब्रेशनल क्वांटम की जगह रोटेशनल क्वांटम विथ सेम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन यहाँ पे क्या था, सेम वाइब्रेशनल लेवल। अब क्या हो गया है, वाइब्रेशनल क्वांटम लेवल विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल accompanied with rotational transition. That spectra called as the rotational vibrational spectra. Okay, so generally 2 to 25 is the region where we already I told to you 300 to 400 बहुत कम स्टडी करते हैं, 25 से लेके वहाँ तक मैक्सिमम हम जो स्टडी करते हैं ना 2.5 से लेके 25 तक हम स्टडी करते हैं। माइट भी 2 भी रहता है, मीन्स 600 500 नैनोमीटर का भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं, सेंटीमीटर का भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास एक आधा इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन हो गया है V0 टू V1, उसे हम बोलते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। देन देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम V0 टू V1, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। बाद में V0 टू V2 फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रॉम V0 टू V3 सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी हम इसको बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको सिर्फ कुछ पॉइंट। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, मोर एंड मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजिशन होने लगता है। occurs electronic quantum number accompanied by both rotational vibrational transition। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, occurs electronic quantum number accompanied by both rotational and vibrational transition, and the spectra is called as the electronic band spectrum। Okay, so that is actually didn't give you syllabus, means theory part कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर गलती से आ गया तो हमें पूरी तरह से इसको स्टडी करना है। और आपको शायद ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिटेल व्हाट इज द थ्योरी ऑफ आईआर। सो थ्योरी के अंदर आपको ये चीज़ें पूरी तरह से मेंशन करनी है, इंक्लूडेड द मोड ऑफ वाइब्रेशंस टू। हमें मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कभी कभी इसमें एक्सप्लेन करना होता है, अदरवाइज देयर इज अ सेपरेट क्वेश्चन आस्क ऑन द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो जनरली हैविंग अ पर्टिकुलर फार्मूला, E इज इक्वल टू, हमने पहले भी स्टडी किया था, E इज इक्वल टू H म्यू, म्यू इज नथिंग बट द C बाय लैम्बडा। ओके, C वी नो दैट वट एवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एंड E is equal to hc by lambda. So where c by hc by lambda is hc mu, where IR spectrum is usually plotted using transmittance। हम जब प्लॉट करते हैं ना तो x एक्सिस पे क्या होता है, ट्रांसमिटन, और नीचे रहता है वट एवर द वेवलेंथ्स। यहाँ पे माइक्रोन में रहते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स में हम बोलते हैं फ्रॉम 4000 से लेके 500-600 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो एनर्जी होती है वो हम इसमें मेजर करते हैं। दैट इज द थियरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट इज द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन? सो in the case of fundamental modes of vibration, we study about the it gives generally bands, that is called as the fundamental bands and overtone bands. So whatever the polyatomic molecules are there, it contain n number of atoms, उसके अंदर बहुत सारे number of atoms है। Okay, and each atom have degree of freedom, that might be moves। suppose हमारे पास
एखादा एटम है, ठीक है, तो सपोज दैट वी हैव, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एटम है, ठीक है, उसके बाद जब ये एटम मूव होता है, ठीक है, इट एटम माइट बी मूव्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके, ये जो एटम है माइट बी मूव्स टूवर्ड्स द दिस डायरेक्शन, हमने इसको अब ये डायरेक्शन है तो इधर एक मूव हो रहा है, माइट बी मूव टूवर्ड्स द दिस डायरेक्शन, might be move towards the this direction. So there are the three different direction through this moves. So this direction is called as the, एक A direction पे move होता है, एक A direction, so they are moving. This is called as the X, this is called as the Y, and this is called as the Z. So each atom has a 3 degree of freedom. यहाँ पे तो एटम कितने हमें पता है, दे आर द, अगर हमने एग्जाम्पल लिया एक चॉक पीस के अंदर अगर हमारे पास एटम्स है, सो दैट डस्ट इज कॉल्ड इज एटम्स, तो एक चॉक पीस के अंदर कितने एटम है, दैट कैन बी, हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बाइंड. सो बट there is a movement of atom inside that molecules in a 3 different directions, might be x, y and z, correspond to 3 directions. So each atom has a 3 degree of freedom. हर किसी atom का एक degree of freedom है. So that is the 3 directions. So that is called as the x, y, z coordinates. So perpendicular to each other. So number of atom in a polyatomic molecule, हमारे पास number of atom कितने पता नहीं है. So we consider that is n. और उन n एटम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, हमें पता है कि 3 डिग्रीज है, x है, y और z है, तो हमें ये तो पता चल गया, लेकिन कितने एटम्स कितने दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो द 3 इज कांस्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो n, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई n एटम की, 3n. सो वी कीप इट एज अ 3n ओवर हियर. सो मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड, हम क्या कर रहे हैं, एखादे मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्क्राइब बाय कंसिडरिंग 3 एस्पेक्ट्स. ठीक है, so might be there is an transition motion, rotational motion and vibrational motion. So motion of a molecule can be described by considering the 3 aspects. ठीक है, in a non-linear polyatomic molecules, आपके पास linear नहीं है, आपके पास क्या है, non-linear polyatomic molecule है. Here 3 degree of freedom describes the rotational motion. Okay, so non-linear है polyatomic molecule, 3 degree of freedoms are generally non-linear. what is my linear? ठीक है, आपके पास अगर हम क्या कर रहे हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो लीनियर मीन्स व्हाट, इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. हम क्या बोल सकते हैं, सपोज दिस वन इज अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द लीनियर, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर. तो लीनियर होने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है. ठीक है, सो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक. लेकिन एक आधा कंपाउंड नॉन लीनियर रहेगा. ठीक है, आपका एक कंपाउंड क्या है, ये नॉन लीनियर रहेगा. तो इसमें क्या हो जाएगा कि सपोज इट माइट बी मूव लाइक दिस वन, एक कंपाउंड जो है स्ट्रेट तो नहीं जा रहा है, सो हियर माइट बी लाइक दिस वन. एक पॉइंट ये रह गया. ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा एक पॉइंट हो गया, और ये इन दोनों में से एक पॉइंट और हो गया. सो दैट इज द नॉन लीनियर. सो 1, 2 और इनके बीच में जो पॉइंट है दैट माइट बी 3, मीन्स द कंपाउंड माइट बी लाइक गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस. सो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया. माइट बी कंपाउंड गो फ्रॉम दिस लाइन टू दिस टूवर्ड दिस, और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, और दोनों के सेंटर में जो है ऑलरेडी एक एक पॉइंट है. सो दैट इज द लीनियर एंड नॉन लीनियर पॉइंट. हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर पॉइंट बोलते हैं. अब इस चीज़ में क्या हो गया है कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये तीनों चीज़ें याद रखो. लेकिन इन अ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये लीनियर नहीं है. लीनियर होता तो क्या होता था, यहाँ से एक और दूसरा पॉइंट, वेयर रोटेशन व्हाट एवर द रोटेशन टेक्स प्लेस, डिग्री ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन. लेकिन रोटेशनल मोशन जब लीनियर मॉलिक्यूल होता है तो स्ट्रेट ही जाता है. सो दैट बिकम्स द, उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 रहता है. ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं एक आधे कंपोनेंट का जो कि लीनियर है.
लेकिन वही चीज़ अगर नॉन लीनियर लेंगे तो क्या हो रहा है, 1 2 और 3, अदरवाइज 1 2 और 3 और 1 2 और 3, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स टू 3। तो ये चीज़ें याद रखना है कि नॉन लीनियर के वक्त, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर, अभी आपको फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन ऑफ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, degree of freedom for vibrational motion of non-linear polyatomic molecule is equal to total number of degree of freedom of non-linear polyatomic molecules। total degree of freedom हमें पता है कितना है, 3n है। degree of freedom of transitional motion, transition remains constant, that remains 3, okay, but degree of freedom for non-linear polyatomic molecule क्या आता है, यहाँ पे 3, हमने वही स्टडी किया है कि degree of freedom for non-linear polyatomic molecule describe the rotational motion, that is the minus, or there is an explained by, means it is explained by 3, so the formula becomes 3n minus 6। लेकिन वही चीज़ अगर हम क्या करेंगे, the whatever the polyatomic molecule is an linear one, ये नॉन लीनियर की जगह पे लीनियर रहेगा तो क्या होगा, whatever the there is not a 3 degree of freedom for rotational motion, here is the 2 degree of freedom for rotational motions, so here is replaced by 3 by 2, the remaining formula is same, so 3n minus 3 plus 2 is equal to 3n minus 5, so that is the things that we have discussed. Over here is the total degree of freedom for non-linear, or sorry, linear polyatomic molecule, bond axis is not possible, okay, hence the rotational motion described by 2 degree of freedom, and further 3 degree of freedom describes the transitional motion, so we get the equation 3n minus 3 plus 2, so final equation is the 3n minus 5. So normal modes of defined as the 3n minus 6 or 3n minus 5 degree of freedom over here, and depends upon the linearity and non-linearity. Non-linear के लिए formula क्या है, 3n minus 6, for the linear 3n minus 5, that is the formula. So we move toward the next. So that is about the whatever the polyatomic molecules of vibration. अब इसके types है, तो types are of 2 types, stretching and bending vibrations are there. So रिमेंबर स्ट्रेचिंग मीन्स व्हाट, हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे, अगर हमने हमारे हाथ में एक स्प्रिंग ले ली, ओके, अब स्प्रिंग को हमने ऐसे एनर्जी अप्लाई कर ली, दोनों हाथ में ली स्प्रिंग को और जोरों से खींच रहे, तो खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, स्प्रिंग ऐसे तानेगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, मीन्स व्हाट गोइंग टू बी हैपन, दे माइट बी, अब आपके पास सपोज यहाँ पे एक स्प्रिंग थी छोटी सी, हमने इसको ऐसा स्प्रेड किया तो क्या हो गया, ऐसे स्प्रिंग इधर बढ़ने लगी, ठीक है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है स्प्रिंग, हम जितनी उसको एनर्जी अप्लाई करेंगे उतनी लंबी होगी, और जैसे हम उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियसली अपनी जगह पे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हम एक आधा रॉड लेंगे और रॉड को हम ऐसे एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और उसको बेंड कर रहे हैं, तो बेंड करने के बाद अगर हम उसको बहुत एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, एक तो एनर्जी बहुत लग रही है, उसको बेंड कर लिया, हमने छोड़ दिया, तो वैसे के वैसे बेंड रहेगा, अगेन हमें और एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसकी ओरिजिनल पोजिशन रिगेन कर सके। So that thing is the difference between the stretching and the bending vibration. Stretching means what? There is a distance between the two atom increase or decrease. ठीक है, आपके पास एक आधा एटम है, ठीक है, तो उसका whatever the distance जो है, ठीक है, सपोज इफ यू हैविंग अ पर्टिकुलर आइटम्स, आपके पास एक आइटम है, तो सपोज दिस वन इज एन आइटम, आपके पास एक ऐसा आइटम है, ठीक है, तो एटम के ऊपर हमने क्या किया है कि एक स्प्रिंग थी, सपोज आपके पास एक स्प्रिंग इतनी छोटी थी, ठीक है, सपोज दिस वन इज स्प्रिंग, हमने क्या किया, इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई कर ली, एनर्जी अप्लाई करने के बाद इधर भी खींच रहे, उधर को इधर भी खींच रहे, तो इसका क्या हो गया, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई इसकी, लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल नहीं बदला, एक ही एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। सो द एक्सप्लेनेशन में क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ बढ़ सकती है स्ट्रेचिंग में, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, उसका बॉन्ड एंगल और एक्सिस नहीं बदलेगा। लेकिन वही है, हमने एक आधा ऐसा रॉड लिया, ठीक है, रॉड ऐसा स्ट्रेट है, ठीक है, हमने इसको बेंड किया, बेंड करने के बाद क्या हुआ, ऐसा ऐसा रॉड हो गया, ठीक है, अब इसको छोड़ दिया रॉड को, तो ये रिगेन नहीं करेगा ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स व्हाट, इसकी लेंथ तो नहीं बदलने वाली, लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी सेम ही है, लेकिन क्या हो गया, इसका एक्सिस बदल गया, इसका एंगल बदल गया। सो देयर इज अ चेंजेस बिटवीन द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। हम उसको खींच नहीं सकते रॉड को, हाँ, लेकिन उसमें डिस्टेंस भी नहीं बदलता उसकी वजह से,
सो स्ट्रेचिंग में डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम इंक्रीज और डिक्रीज। हम एक आइटम अगर आपके पास है, सपोज दिस वन इज एन वन आइटम, ठीक है, ये सेंटर पे एक आइटम है और ये एक सेंटर पे एक दूसरा आइटम है, ठीक है, तो ये आइटम और ये आइटम है, तो हमने इसको खींचा तो क्या हो गया कि डू आइटम इंक्रीज और डिक्रीजेस, उनके बीच में का डिस्टेंस है कम ज़्यादा हो रहा है, सो लेंथ कैन बी चेंज, इसकी लेंथ बदल रही है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, एंगल कैन नॉट बी चेंज। ओके, बेंडिंग में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द अटैच आइटम टू सेंटर आइटम्स, सो ओके जनरली जो है ना, अगर आपके पास ये सेंटर आइटम है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास ऐसा सेंटर आइटम है, यहाँ से यहाँ तक उतना ही है, ये जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है। ओके, मूवमेंट ऑफ आइटम अटैच टू सेंटर आइटम, सो लेंथ कैन नॉट बी चेंज, इसके अंदर लेंथ चेंज नहीं होगी, बट एक्सिस एंड एंगल कैन चेंज। सो दे आर द वेरियस टाइप्स आर देयर, लाइक सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग। सीजरिंग मीन्स हम सीजर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब सीजर मीन्स कैंची, हम जब बोलते हैं तो कैंची में क्या होता है, अगर हम उसको कट करने के लिए कोशिश करेंगे ना तो दोनों पॉइंट पास आएंगे, अगर हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे दोनों पॉइंट दूर चले जाएंगे। तो क्या होता है, वाट एवर द स्ट्रेचिंग इज देयर, तो अब हम यहाँ पे, और उसके पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिकल मीन्स व्हाट, आपके पास एक सेंटर आइटम है यहाँ पे, ठीक है, और एक आइटम है और एक आइटम है, ठीक है, सेंटर से मूवमेंट हो रही है, तो साइमल्टेनियसली एक मूव हो रहा है इधर डायरेक्शन पे, एक मूव हो रहा है इधर डायरेक्शन, और वाइस वर्सा, दोनों भी सेंटर की तरफ आ सकते हैं या दोनों भी सेंटर की तरफ दूर जा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, मीन्स एट अ टाइम बोथ atoms come close to center, towards the center or away from center, दोनों मूव हो रहे हैं। और अनसिमेट्रिकल मीन्स व्हाट, कि जब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे ना तो एक सेंटर की तरफ आ रहा है तो एक क्या हो रहा है, सेंटर की दूर चला जाएगा, और वाइस वर्सा, ए सेंटर की तरफ आएगा, ए सेंटर से दूर चला जाएगा। सो दैट इज देन व्हाट इज द अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एज वन आइटम मूव्स टुवर्ड द सेंटर व्हाइल द अदर मूव्स अवे। और सिमेट्रिकल क्या बोलते हैं, बोथ आउटसाइड एटम्स मूव्स अवे फ्रॉम और टूवर्ड द सेंटर, एक दोनों भी सेंटर की तरफ आएंगे या दोनों तरफ से चले जाएंगे। सो दैट इज अ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग में क्या हो रहा है कि देयर इज एन 4 टाइप्स, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। सो सीजरिंग में क्या होगा, सिमेट्रिकल बेंडिंग, वाइब्रेशन इन प्लेन। सो सपोज दिस एटम्स आर देयर, तो ये जो है ना ये इधर चला जा रहा है, हम अगर उसमें का क्या करेंगे, ये ना इधर से ऐसे हम इसको मूव करेंगे, तो जैसे हम इसको मूव करने लगेंगे तो दोनों भी सेंटर एक तरफ चलाएंगे। ओके, सो इन द केस ऑफ दिस वन, इफ यू एबल टू सी इन दिस, सो दिस इज मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सो दे माइट बी मूव टूवर्ड्स, दोनों भी पॉइंट एक तरफ आ जाएंगे, और माइट बी दे मूव टूवर्ड्स द अदर, एक तो ये दोनों अवे मूव हो गए ऐसे दोनों भी, अदरवाइज दे आर मूव टूवर्ड्स द ईच अदर, ये दोनों भी क्या करेंगे, ऐसे ईच अदर मूव करने लगेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज द सीजरिंग। कैंची के जैसे रोल करते हैं, दोनों पॉइंट पास आ रहे, दोनों एक सेंटर है कैंची का और दोनों पॉइंट है, एक तो कट करते समय दोनों भी हम नजदीक के दूर लेते हैं, सो दे कम टूवर्ड्स द ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बाद में देन देयर इज अ रॉकिंग, रॉकिंग पर्वत के जैसे रहता है, इटसेल्फ रॉक मीन पर्वत। तो क्या होता है कि इस चीज में अगर आपने देखा है तो एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और एक जगह पे क्या बोल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द रॉकिंग। ये पर्वत जैसा, एक ऊपर जा रहे तो एक नीचे आता है। देन देयर इज एन ट्विस्टिंग टेक्स प्लेस। सो ट्विस्टिंग में क्या होता है कि जनरली आउट ऑफ सिमेट्री रहता है, एक प्लेन के, सपोज देयर इज एन वन प्लेन, एक सपोज यहाँ पे आपके पास ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक आइटम ऐसा मूव हो रहा है, ठीक है, एक आइटम क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ से आपके पास एक आइटम ऐसा इधर से मूव हो रहा है, और एक आइटम क्या हो रहा है, ऐसा मूव हो रहा है। सो देयर माइट बी कंप्लीट रोटेशन, सिमेट्रिकल बेंडिंग, वाइब्रेशन आउट ऑफ प्लेन, इसको हम आउट ऑफ प्लेन भी बोलते हैं। तो माइट बी, अब ये प्लेन है, तो जैसे ही ये इधर से स्टडी कर रहा है तो ये आपकी इस प्लेन में यहाँ पे स्टडी करेगा और मूव करेगा। सो दैट इज आउट ऑफ प्लेन भी बोलते हैं हम। ओके, सो
दैट इज सेंटर पॉइंट है आपका, एक अबो मूव कर रहा है, ये आपके पास कैसा एक ऐसा एक सेंटर पॉइंट है आपके पास, ठीक है, एक ऐसे आपके पास क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, एक अबो मूव कर रहा है ऐसा ऊपर के साइड पे, और ये इसके नीचे एक मूव कर रहा है, सो दैट इज आउट ऑफ प्लेन, सिमेट्रिकल बेंडिंग। और एक जो रहता है ना अनसिमेट्रिकल, तो उस वक्त क्या होता है कि दैट इज आउट ऑफ प्लेन वैगिंग। तो एक वैगिंग में क्या होता है कि सपोज दिस वन इज अ सेंटर लाइन, आपके पास ऐसे एक सेंटर लाइन है, तो एक यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है, एक क्या हो रहा है ऐसा, इस जगह पे एक सेंटर आइटम है जो मूव हो रहा है, और एक क्या होगा, ये प्लेन को छोड़ के नीचे वाले साइड पे यहाँ पे मूव करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द आउट ऑफ प्लेन। एक अबो के साइड पे मूव कर रहा है, एक लोअर के साइड पे मूव कर रहा है, सो दैट इज द वैगिंग। सो दे आर द 4 different types of modes of vibration. I will provide you notes of that in the with your Google Classroom. Okay, so leave it aside for that point. Then that is the different types of modes of vibration. The question may ask on what is the polyatomic molecules, explain detail with the modes of vibration. So that is very classic and very important point are there. Now we move toward the next one. What are the factors are there that affects the modes of vibration? सो सिमेट्रिकल कंपाउंड, फर्स्ट थिंग है कि सिमेट्रिकल कंपाउंड आयर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, आयर इनएक्टिव है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका एक आधा हाइड्रोजन अगर हमने चेंज कर लिया तो क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन शोन करता है, सो दैट इज अ सिमेट्री। सो सिमेट्रिकल कंपाउंड डजंट पोजेस द डायपोल मोमेंट एंड आर आयर इनएक्टिव। ओके, एसिटिलीन का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। देन देयर इज अनदर वन, कपलिंग। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कॉजेज द कपलिंग वाइब्रेशन आयर. It will influence the intensity and shape of the absorption band. There are so many factors which causes the coupling vibrations in IR, and it will influence the intensity and shape of the absorption band. Example, normally the band due to the carbon-carbon bond is around 1650 centimeter inverse. ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये जो रीजन है, हम अगर एक हमारा पॉइंट लिया हमने, एक ऐसा एक यहाँ से एक पॉइंट ले लिया ऐसा, सो व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस, तो आपके पास अगर हमने स्टडी किया तो जो 4000 है ना, ऐसा 4 0 अनदर 0 और अनदर 0, सो ऐसे 4000 का जो रीजन होता है ना, यहाँ से लेके हियर इज अ 1, देर इज अ 3, देन देर इज अ 0 एंड देन देर इज अ 0. सो दैट रीजन फंक्शन ग्रुप रीजन, और इसके जो बियॉन्ड रहता है नियरली 500, ये जो इसके सराउंड रहता है ना, उसको बोलते हैं हम फिंगरप्रिंट रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द फिंगरप्रिंट रीजन। तो इस रीजन में हमने क्या बोला है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अराउंड 1650 सेंटीमीटर, बट ड्यू टू द, अब यहाँ पे 1300 है, तो यहाँ के इसके जो बाजू है ना 1600, यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन, नॉर्मली द बैंड ड्यू टू द कार्बन कार्बन बैंड अराउंड 1650 सेंटीमीटर्स, बट ड्यू टू द मैकेनिकल कपलिंग, इसके अंदर अगर हमने मैकेनिकल कपलिंग हुआ, द कार्बन कार्बन सिस्टम अलीज गिव द बैंड 1960 एंड 1970। ये यहाँ से 1600 भी दिखाने की जगह दैट शोज अस अ बैंड एट 1960 और 1970 centimeter inverse. So that is an important fact. That is a coupling is factor affecting to the vibrational. Then Fermi resonance. Fermi resonance means what? Generally the result in an unexpected shift in energy and intensity of bands. Fermi resonance की वजह से क्या होता है? Result unexpected shifts in energy and intensity of bond. Example, O2 carbon and hydrogen. Deformation made at 1400 centimeters is always Fermi resonance with the stretch of the same band at 2800 centimeter inverse. जब कार्बन हाइड्रोजन फॉर्मेशन मेड रहते हैं तो ये 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे हमने 1300 दिया है तो यहाँ पे 1400 सेंटीमीटर इनवर्स इज ऑलवेज इन अ फेरी रेजोनेंस विद द स्ट्रेच ऑफ सेम बॉन्ड इन 2800. अगर हमने यहाँ पे सेम ही यहाँ पे हो क्या करने लगता है, स्ट्रेच करने लगता है. सो दैट इज अ फर्मी रेजोनेंस. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयर इज इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर. इट कैन चेंज द शेप एंड पोजिशन ऑफ आयर बैंड्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है,
एक आपके पास एक पर्टिकुलर ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो ये क्या करने लगता है कि जनरली ये हमें अफेक्ट मीन्स वाट एवर द, अब आपके पास क्या है कि ये जो है द इट कैन चेंज द शेप एंड आयर, आपके पास ऐसा ऐसा स्ट्रेट प्लेन आयर मिल रहा है, ठीक है, ऐसा पिक रहता है और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन लेती है और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन रहती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट कैन चेंज द शेप एंड पोजिशन ऑफ आयर बैंड्स, ये आयर बैंड की शेप एंड पोजिशन बदल देता है। स्ट्रॉन्गर द एज बॉन्डिंग ग्रेटर द अब्जॉर्प्शन शिफ्ट, जितना ज़्यादा वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट, ओके, greater the absorption shift takes place. So intermolecular bonds, okay, intermolecular अगर रहेंगे तो broad band मिलेंगे हमें, okay. So broad bands means what, it is like you get a peaks like the broad band, ऐसे थोड़े जाड़ मिलेंगे। लेकिन जब वहाँ पे intermolecular होगा तो sharp band, sharp means like this one, you can able to see there is an sharp band over here, so that is the intramolecular. So that is another point. Then electronic effect, electronic effects such as inductive effect, mesomeric field effect, I think everything we studied in organic chemistry. So we not move that one in detail, but उतना याद रखना है कि may cause the shift in absorption band due to change in the absorption frequency. अगर इसके अंदर ये inductive effect, mesomeric effect, okay, so this is due to the example is inductive acetone. So 1715 centimeter inverse and chloroacetone generally 1725 centimeter inverse. So mesomeric acetophenone is generally 1693 centimeter inverse and P amino acetophenone is generally 1677 centimeter inverse. So these are the things that are going to be affected, and also we are taking to the last one, or means the bond angle. Difference in the bond angle can lead to the changes in absorption band. Difference in bond angle can also lead to change in the absorption. उसके अंदर जैसे इसके different टाइप से bond angle होगा वैसे उसके absorption bands भी shift होंगे, change होंगे. So that much is about the whole factors affecting the whatever the modes of vibration. I hope that you are getting the whatever thing of the basic of this chapter. So I am saying thank you very much for your patience listening and wish you a happy learning. Thank you.